Good morning, children. Children, today we are going to start the new chapter, chapter 6, Gulliver in the land of Lilliput. Before we start the chapter, did you like the story of Gulliver's travels in the previous chapter? The previous chapter was Gulliver's travels, right? So, did you like the story? You remember? The story Gulliver's Travels is about a doctor who loves to travel, right? Who loves to travel to distant places. He was a qualified doctor, but he didn't want to sit at a place and do his practice. He wanted to do adventures. He was, an adventurous person. He loved to do adventures in his life. So he took up a job as a ship's doctor. And usually his, traveling in sea is very difficult because sea storm and, such things, they destroy the ship. Or if a ship is hit by an iceberg, और एज द टाइटनिक, सबने टाइटनिक देखी है? टाइटनिक आइसबर्ग से टकराया था. इसी तरह किसी भी आइलैंड से टकरा जाती है कभी शिप, कभी किसी स्टोन से, कभी किसी जो बड़े बड़े आइलैंड के स्टोन्स होते हैं उनसे, कभी वॉयलेंट स्टॉर्म आता है तो शिप रेक हो जाती है. अच्छा, शिप अगर डिस्ट्रॉय होती है तो जो वो पीछे छोड़ जाती है वो शिप रेक होता है. यानी जब शिप डिस्ट्रॉय हुई तो जो रह जाता है शिप का बचा हुआ या बचे हुए लोग, उनको बोलते हैं शिप रेक्ड. जैसे लोग रह गए तो वो शिप रेक है. आई विल रीड फॉर यू. सी, रीड बिलो एंड फाइंड अबाउट गलिवर्स एडवेंचर वेयर ही वॉज शिप रेक्ड इन अ लैंड ऑफ पीपल हु वर ओनली 6 inches tall. तो गलिवर के एडवेंचर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और वो शिपरेक हुआ था. ही वॉज शिपरेक्ड. कहाँ पे शिपरेक हुआ? इन अ लैंड ऑफ पीपल हु वर ओनली 6 inches tall. 6 inch ऐसे लैंड पे वो शिपरेक हुआ जहाँ पे सिर्फ 6 inch tall लोग रहते थे. शिपरेक मीन्स उसकी शिप डिस्ट्रॉयड हुई और वो कहाँ पहुँच गया? वो एक ऐसे लैंड पे जहाँ पे सिर्फ 6 inches tall लोग रहते थे. 6 inches tall क्या होता है बेटा? आपका जो छोटा स्केल होता है ना, जो आपने पेंसिल बॉक्स में रखते हो, नॉट द बिगर वन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर वन. जो छोटा स्केल वो 6 inches का होता है. सो इतने छोटे लोग, जस्ट इमेजिन. इसीलिए उस लैंड का नाम था लिलीपुट. ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर फॉर यू. I must have slept for about 9 hours, for when I woke up, it was daylight. I tried to get up, but I couldn't move. My arms and legs were tied to pegs fastened into the ground. Thin, strong cords were tied across my body and attached to pegs in the ground. My long hair was spread out and tied down in the same manner. All I could do was to stare upwards at the sun, blinking to ease the pain on my already strained eyes. Suddenly, I heard strange noises around me, but I couldn't move to find out what they were or where they were coming from. The next moment, I felt something alive moving on my leg. It progressed over my stomach and onto my chest, stopping just below my chin. I lowered my eyes downward as much as I could, hoping to see what sort of insect was crawling on me. Then I suddenly gasped. Why? It's a human creature, barely 6 inches tall. This creature had a bow and arrow in his hands.
and was followed by 40 more creatures like him. I was so surprised that I let out a frightful roar. All the creatures ran helter skelter and jumped off my body in terror. After some time, they gathered courage and climbed back onto my body. This time, one of them even clambered onto my chin to get a closer look at me. He let out a screech of excitement. Hikina Degul! Hikina Degul! Repeated the crowd after him. I didn't give too much attention to their words. I was more concerned with setting myself free. By twisting and turning and pulling and pushing, I managed to pull out the pegs that were holding my left arm down. With one arm free, I was able to free my hair and turn my head to the right. There were cries of panic from the little creatures, and suddenly hundreds of tiny arrows hit my left hand, pricking me like hundreds of needles. When arrows began striking my face, I groaned with pain and raised my left hand to protect myself. They also started jabbing spears at my sides. Luckily for me, my jacket was thick and prevented me from getting severely injured. I thought to myself that the wisest thing to do would be to lie still until night. So I stopped struggling and the arrows stopped coming. But soon I heard another loud noise near my right ear. It was like a banging, like people at work. I turned as much as I could and saw about 50 of the creatures setting up a platform, a foot and a half above the ground. Soon 4 of them climbed up ladders and stood on the platform. In the middle was an important looking man. He made a long speech looking in my direction. And of course, I didn't understand a word of it. But I could tell from the tone of his voice that some words were threats, others promises, and still others reassurances, especially when he pointed all around and repeated over and over, Lilliput, Lilliput. So I was in a place called Lilliput. Though I had never heard of such a country or seen it on a map, I tried to answer the important looking man and tell him that I was a friend and meant no harm. I even raised my eyes and hands to heaven to make my promise stronger. The last time I had eaten was hours before the ship sank, so I had to show these people that I was hungry. I did it by putting my fingers into my mouth as I spoke. The great Hergo, as I later learned, this important lord was called, understood my signs and shouted out orders to the crowd below. 100 little people immediately placed ladders at my sides and climbed up on my body with baskets full of meat and bread, which they dumped into my mouth. This was the food that their emperor had ordered as soon as he had received word of my arrival. When I signaled that I was also thirsty, they rolled a barrel up a ladder and across my chest. Then they poured a delicious liquid that tasted like wine. But their barrel was only equal to a cup. And after they had given me a second barrel,
They showed me that they had no more. I was grateful to these little creatures. They had treated me generously. Okay, so this chapter also is adapted from Gulliver's Travels by Jonathan Swift. So Gulliver's Travels is a book written by Jonathan Swift. He's an imaginative writer. He has written these stories. Actually, he has written a book. और ये दोनों chapters आपके उसी book से extract किए हुए stories हैं, right? First chapter 5 आपने Gulliver's Travels पढ़ा था, ये उसी का continuation है, आगे की story है, right? See, about the author, Jonathan Swift, 1667 to 1745. He was an Irish author who wrote a number of novels where he used humor to criticize various issues of society. He was also the head of St. Patrick's Cathedral in Dublin, Ireland. Otherwise, आपको Jonathan Swift के बारे में आपने last chapter में भी पढ़ा था बच्चे, right? So your work is to read the chapter. Today you are going to read the chapter. अगर आपको किसी word का pronunciation clear नहीं होता है बेटा, you can ask me. Okay, because I have read a chapter in a go so that you follow it, and you should know that how to pronounce each and every word. So pronunciation part is very important. So today you are going to read chapter 6. Okay, now I am going to explain you the meanings of hard words. Okay, the hard words of the chapter. Shipwrecked. First word is shipwrecked. Left by a ship, destroyed at sea. जब एक ship sea पर destroy हो जाती है, टूट जाती है किसी भी रीज़न से, तो उसके जो बचे हुई चीज़ें होती हैं, जो बची हुई ship होती है या लोग होते हैं, उनको बोलते हैं shipwrecked. लोगों के लिए बोलते हैं they are shipwrecked. सामान के लिए जैसे जो टूटी हुई ship का पार्ट होता है, तो the ship is wrecked, right? सो द बचा हुआ जो भी पार्ट होता है, डिस्ट्रॉयड, लेफ्ट बाय अ शिप. शिप से बचा हुआ जो भी चीज़ें हैं, जब शिप डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको बोलते हैं शिप wrecked. सेकेंड वर्ड, pegs. शॉर्ट nails used to hold or tie the objects to the ground. जो nails होते हैं ना, कील जिनको हिंदी में बोलते हैं बेटा, वो nails जो ग्राउंड पे उसको ऑब्जेक्ट को फासन करने के लिए, टाइट करने के लिए, फिक्स करने के लिए लगाए जाते हैं. जैसे टेंट देखा है आपने ईवीएस में पढ़ा होगा टेंट. तो टेंट लगाने के लिए आप नीचे कीला ही बड़े से कील होते हैं वो, उनको आप ग्राउंड में फिक्स करते हैं जिससे कि टेंट खड़ा हो पाता है, राइट? तो वैसे ही छोटे शॉर्ट नेल्स होते हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टाई करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम पेग्स बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ फास्टेंड. इसको बोलते हैं फास्टेंड. हियर टी इज़ साइलेंट. ओके, फास्टेंड मीन्स फिक्स्ड. किसी चीज़ को फिक्स कर देना. जब आप नेल को हैमर से अच्छे से वो करते हो और वो अंदर फिक्स हो जाता है, तो आप जिस चीज़ को टाई कर रहे हो वो भी फिक्स हो जाती है, राइट? वो वहाँ से फिर हिलेगी नहीं जब तक आप उसको उखाड़ोगे नहीं. फास्टेंड मीन्स फिक्स्ड. कॉर्ड्स. कॉर्ड्स मीन्स रोप्स. इसको बोलते हैं हिंदी में रस्सी. ओके, सो यू कुड सी यू कैन सी इन द पिक्चर, ये छोटे छोटे बोल्ट्स हैं ऐसे जो दिख रहे हैं ना, ये पेग्स. दीज आर पेग्स. और ये जो रस्सी है इसको बोलते हैं कॉर्ड्स. और वो देखो ग्राउंड में जो छोटे छोटे स्टैंडिंग लाइन से दिख रही है ना, वो सारे पेग्स हैं, शॉर्ट नेल्स, जिनको ऐसे किया जिससे रस्सी फिक्स हो जाए ग्राउंड पे. और उन्होंने बांधा किसको है? डॉक्टर लेम्यूल गलिवर को, राइट? सो हार्ड वर्ड्स ऑन पेज 46. ईज, टू रिड्यूस. कभी आपको पेन होता है तो बोलते हैं ना, टेक अ पेन किलर टू ईज योर पेन. तो रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए आप पेन किलर खाते हो. तो ईज मीन्स टू रिड्यूस. स्ट्रेन्ड, स्ट्रेस्ड, टेंस्ड. स्ट्रेन का मतलब होता है टेंस्ड होना, स्ट्रेस्ड होना, टेंशन में बहुत ज़्यादा होना. प्रोग्रेस्ड मीन्स मूव्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ना. गैस्प्ड, ब्रेथ हेविली,
टू होल्ड वंस ब्रेथ विथ सरप्राइज, जब आप किसी चीज़ के लिए सरप्राइज ऐसे करते हो, एकदम से हैविली, बहुत डीप सांस लेते हो, इतनी डीप सांस लेते हो कि आवाज़ आती है सांस लेने में, ऐसे, और फिर ऐसे हाँ करके फिर अपनी सांस रोक लो तो वहाँ पे 2 मिनट के लिए मुंह खोल के एकदम सरप्राइज से ऐसा हो गया, ये ना, दिस इज गैस्प्ड. बेयरली, बेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से, बहुत थोड़ा. फ्राइटफुल, फ्राइटफुल मीन्स टेरेबल. कुछ वर्ड्स तो बेटा ऐसे होते हैं जिनके नाम से ही उसका मीनिंग समझ आ जाता है. फ्राइटफुल मीन्स टेरेबल, भयानक. टेरर, फियर. टेरर मीन्स डर, डर मीन्स फियर. क्लैम्बर्ड मीन्स मुश्किल से क्लाइंब करना. सो दे क्लैम्बर्ड ऑन डॉक्टर गलिवर्स चेस्ट, द शॉर्ट 6 inches पीपल. तो वो क्लैम्बर किया था, यानी मुश्किल से क्लाइंब किया था, क्योंकि वो छोटे छोटे थे. डॉक्टर गलिवर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह था, तो उनको चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी. सो क्लैम्बर्ड मीन्स क्लाइंब विद डिफिकल्टी, मुश्किल से चढ़ना. स्क्रीच, बेटा स्क्रीच मीन्स शाउट, स्क्रीम, चिल्लाना. नाउ पेज 47. पैनिक. पैनिक, जब आप कोई अचानक से ऐसी न्यूज़ सुनते हो तो आप बहुत पैनिक करने लगते हो. फायर, कहीं आग लग गई तो भी आप पैनिक करने लगते हो, हड़बड़ा जाते हो, अनकंट्रोलेबल हालत में हो जाते हो. जैसे कि सडन अनकंट्रोलेबल फियर, आप डर के घबरा जाते हो. अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इधर भागो उधर, कुछ समझ नहीं आता आपको क्या करना है. आप सिस्टमेटिक अगर आराम से उसी चीज़ को करोगे तो वो ईजिली करोगे, बट आप घबरा जाते हो और सब हड़बड़ाहट में करने लगते हो और कुछ भी सही नहीं करते हो. सो पैनिक मीन्स एंग्जाइटी या फियर, एकदम से अचानक से जो होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी बहुत ज़्यादा. ग्रोन्ड, ग्रोन्ड मीन्स क्राइड, रोना, तकलीफ में रोना. जैबिंग, पोकिंग. देखो जब आप क्लास में भी एक दूसरे को पेंसिल, कोई शैतान बच्चे होते हैं वो पेंसिल चुभाते हैं, पोक करते हैं पेंसिल, तो ऐसे जैबिंग मीन्स पोकिंग रफली विदाउट समथिंग, विद समथिंग शार्प और पॉइंटेड. कुछ शार्प और पॉइंटेड से किसी को पोक करना, ठीक है, पेंसिल से पोक करते हैं ना आपके फ्रेंड्स कभी कभी आपको, सो दैट इज जैबिंग. सिवियरली, सिवियरली मीन्स सीरियसली, बहुत ज़्यादा. Okay, now children, there is a proverb also, setting up. Setting up to construct something. Setting up मतलब होता है, setting up किस लिए यूज़ होता है, जब आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए setting up वर्ड यूज़ होता है, right? Now page 48. Threats. Threats means warning, कि धमकी देना जिसको बोलते हैं, right? Reassurances, यानी अपने पीपल को वो रीअश्योर कर रहा था, जो किंग था, कि घबराओ नहीं. वो सब डर रहे थे, वो इतने छोटे थे, वो इतना बड़ा सा था, तो सब उससे डर रहे थे कि ये हमें हार्म करेगा. तो जो किंग था, किंग का, राजा का क्या काम होता है, अपनी प्रजा को अश्योरेंस देना कि घबराओ मत, मैं हूँ, मैं देख लूँगा. तो वही अश्योरेंस, रीअश्योरेंस किंग दे रहा था अपने लोगों को, जो उसके 6 inches टॉल पीपल थे वहाँ के. उनको होप्स दे रहा था, एनकरेज कर रहा था कि डरो मत, उनको रीअश्योर कर रहा था कि आई एम देयर, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग. डम्प्ड, पुट, ड्रॉप्ड. डम्प, किसी चीज़ को डंप करना, जैसे आप कूड़े को डंप करते हो, ड्रॉप करते हो, पुट करते हो. अराइवल, अराइवल मीन्स कमिंग, आना. नाउ बैरल. बैरल बड़ा सा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, या फिर ड्रम. जो ड्रम होता है, कई लोगों के घर में ड्रम में पानी भर के रखते हैं ना, उसको वैसा बैरल होता है. पर जो इनका बैरल था, क्योंकि ये लोग खुद ही छोटे थे, तो इनके बैरल का साइज़ इनके हिसाब से छोटा था. पर यूजुअली जो बैरल होते हैं वो बड़े होते हैं, पर वो इतने छोटे खुद ही थे, तो बड़े बड़े बैरल तो वो हिला ही नहीं सकते थे. जो एक कप साइज़ का बैरल भी था, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा बैरल था, राइट. बट जब उन लोगों ने उस बैरल से उसको वाइन की टाइप का लिक्विड पिलाया, तो उसके लिए तो वो 2 कप ही था, सिर्फ 2 कप के बाद उनके पास ख़त्म भी हो गया.
बट उनके लिए वो 2 कप बहुत ज़्यादा था, वो 2 कप नहीं था, वो पूरा बैरल था, क्योंकि वो खुद बहुत छोटे थे. दे वर 6 इंचेस टॉल. सॉरी. जनरसली मीन्स काइंडली. जब उनको ये हो गया कि ये हमें कोई हार्म नहीं करेगा, तो सब ने उसके साथ बहुत काइंड बिहेवियर किया. और जब वो आया था तभी वहाँ का जो एम्परर था लिलीपुट लैंड का, उसने उसके लिए खाना और वाइन ऑर्डर कर दिया था. सो जब उसने ये शो किया कि मैं हंग्री हूँ, मैं कोई हार्म नहीं करूँगा, आई एम अ फ्रेंड टू यू पीपल, तब उन लोगों ने उसको खाना ऑफ़र किया. और खाना खिलाने के लिए भी उनको उसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह में खाना डम करना पड़ा था, फेंकना पड़ा था खाना उसके मुंह के अंदर. they had to put food inside his mouth. Okay, I hope the new words are clear. Now you have to read the chapter, right? I want everybody to read the chapter, and if you have any confusion in any word, you may ask. Okay, thank you, children.